السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، آج کی جو بالخصوص آج کے دن کے حوالے سے بات کر لی جائے تو آج 6 سال جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن جو ہے اس کے حوالے سے یقیناً ایک بہت بڑی ہم نے دیکھا کہ سیاسی کمپین بھی نظر آئی، بہت زیادہ میڈیا کا ایئر ٹائم بھی گیا، اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ 14 افراد جو ہے اس حادثے میں اپنی جان سے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً جو ہے وہ درجنوں کی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے، اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ تھا جو کافی ایک طویل عرصے سے تک جو ہے وہ نہیں تھم سکا، اور وہ تھی ایک جدوجہد کہ اس تمام تر واقعے کی ذمہ دار جو بھی افراد ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری جو عمل تھا کہ مطلب بہت کیٹیگوریکلی جو ہے وہ کچھ لوگوں کو پن پوائنٹ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن ایک آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی ریاست کے لیے جہاں پر انصاف کی صورتحال یہ ہو کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو ہائی لائٹ ہونے کے باوجود آج کے دور میں جب میڈیا ویڈیوز تمام تر چیزیں موجود تھیں، بہت سارے اپوائنٹمنٹس سے جو آن ٹائم ہوئے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں جو سامنے تھیں، اس کے باوجود جو ہے وہ آج تک اس مقدمے کے حوالے سے تشفی نہیں ہو سکی ہے۔ یہ پاکستان میں پہلا مقدمہ یقیناً نہیں ہے، اس نوعیت کے مختلف کیسز جو ہے وہ پاکستان میں ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن جو ملزمان تھے مکمل طور پہ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچے ہوں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ شاید جس کی بنیاد پر ہم کسی بھی سطح پر کسی بھی ریاست میں جو ہے وہ اپنے نظام کو بہتر نہیں بنا سکتے، اور پاکستان کی جو صورتحال ہے نہ صرف سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جرم کی بات کر لی جائے بلکہ اوور آل جو بھی جرائم کی صورتحال ہے پاکستان میں، کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 1% سے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ گزشتہ 2 سال سے یقیناً موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی، جس کے بہت زیادہ دعوے تھے ریہیبلیٹیشن کے، جو نظام میں اصلاحات کے حوالے سے بہت زیادہ دعوے تھے، اس پہ کسی قسم کی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اور اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بات کر لی جائے تو کسی حد تک سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جو ایک بڑی حد تک جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ تھی جو شہداء ہیں ان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس دور میں آج کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بہت بڑی بڑی باتیں اور دعوے بھی اس سے متعلق سامنے آئے، لیکن گزشتہ 2 سال میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی خاص پروگریس جو ہے وہ اس تمام تر معاملے پر ہو سکی ہو۔ نور اللہ صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، رہنما پاکستان عوامی تحریک کے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا افضل خان صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ سب سے پہلے نور اللہ صدیقی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کس حد تک جو ہے وہ جو بھی آج تک کی جو پروسیڈنگز ہیں، جو بھی معاملات آج تک کے رہے، کس حد تک جو ہے وہ آپ کی تشفی ہوئی اس سارے معاملے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج سے 6 سال قبل 17 جون 2014 کے دن ماڈل ٹاؤن میں منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی رہائش گاہ پر حملہ کیا گیا۔ وہ حملہ کیوں کیا گیا اور اس کے پس پردہ کیا عوامل تھے، یہ جاننے کے لیے ہم 6 سال سے غیر جانبدار تفتیش کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں حق نہیں ملا۔ 2 سال پہلے جب نون لیگ کی حکومت تھی، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہی یہ سارا پلاٹ بنایا تھا، اور بے گناہوں کے قتل عام کے حوالے سے جتنی بھی منصوبہ بندی تھی یہ اسی دور حکومت میں ہوئی تھی، جس کا مقصد تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جون 2014 میں پاکستان آ کر تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا، کچھ پریس کانفرنسز کی تھی، جو کہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے جو اپنے پروگرام کے ساتھ سیاست کرتی ہیں، اپنا آئندہ کا لایا عمل دیتی ہیں اور بطور اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو اس وقت کے حکمرانوں کو یہ خوف تھا کہ اگر ڈاکٹر طاہر القادری نے تحریک چلائی اس حوالے سے تو ان کا جو تخت ہے وہ تختہ ہو سکتا ہے۔ صدیقی صاحب، لیکن ڈاکٹر صاحب نے تو اپنی پوری کوششیں کر لی، اس کے بعد یہ 14 افراد جو شہید ہوئے، اس کے بعد سے جب وہ تحریک اختتام ہوئی، لیکن اس کے بعد آج تک کی جو صورتحال ہے اس میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کہیں نہیں نظر آتے ہیں، سوائے یہ کہ سالانہ برسی جو ہے وہ منائی جاتی ہے۔ سر ایسے ہے کہ اب جب دسمبر 2019 میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے ڈاکٹر صاحب پیش ہوئے تھے، اور وہاں انہوں نے اپنا ایک موقف دیا تھا کہ ہمیں غیر جانبدار تفتیش کا حق دیا جائے۔ اس وقت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب نے اور لارجر بینچ کے تمام ارکان نے اس ڈاکٹر صاحب کے اور تحریک منہاج القرآن اور شہدائے ماڈل ٹاؤن کے ورثاء کے اس موقف کو تسلیم کیا کہ دوسری JIT بن سکتی ہے، اور پھر دوسری JIT بنائے جانے کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی میاں ثاقب نثار صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اب آپ کا غیر جانبدار تفتیش والا جو مطالبہ ہے وہ مان لیا گیا ہے، اب احتجاج کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ احتجاج نہ کریں، نہ دھرنے دیں، اب آپ قانونی پروسیس کا حصہ بنیں۔ تو بیسیکلی جب ہم احتجاج کر رہے تھے تو اس کا مقصد، پہلے احتجاج کیوں کر رہے تھے؟ FIR درج نہیں ہو رہی تھی، جو کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ پھر ہم احتجاج کیوں کر رہے تھے کہ ہمیں غیر جانبدار تفتیش کا حق نہیں مل رہا تھا۔ پھر جب سپریم کورٹ نے وہ حق دیا
اور اے ڈی خواجہ کی سربراہی میں ایک غیر جانبدار جے آئی ٹی بنی اور اس جے آئی ٹی کو جو ملزمان ہیں ان کا اعتماد بھی حاصل تھا اور مقتول پارٹی اس کا بھی اعتماد حاصل تھا. نواز شریف صاحب نے بھی اس پر بیان قلمبند کروایا, شہباز شریف صاحب نے بھی بیان قلمبند کروایا, رانا ثناءاللہ, جتنے بھی ہم پولیٹیکل جو ملزمان تھے, پولیٹیکل سائٹ سے جتنے بھی ہمارے ملزمان تھے, سب نے بیان قلمبند کروایا. پھر جب وہ 90% جے آئی ٹی نے اپنا کام مکمل کر لیا تو یکا یک اس کو اسٹے آرڈر کر دیا گیا, روک دیا گیا پروسیڈنگ سے. تو بات یہ ہے کہ غیر جانبدار تفتیش کیوں نہیں ہونے دی جا رہی؟ جو پس پردہ حقائق ہیں, جو ملزم ہیں, ان کو منظر عام پر آنے سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ کون خوف زدہ ہے؟ صدیقی صاحب, آپ کے خیال میں آج کے حالات میں جو ہے وہ اگر مسلم لیگ نون نے یہ پلاٹ جو ہے وہ ڈیزائن کیا تھا تو مسلم لیگ نون اتنی انفلوئنشل ہے آج بھی کہ وہ اس تمام تر معاملات کو روکنے میں کامیاب ہو سکے؟ دیکھیں, ابھی تو ہم یہ بات تو نہیں کر رہے. جب یہ اقتدار میں تھے تو ہمارا یہ گمان تھا, بلکہ گمان تو نہیں تھا, ایک یقین تھا کہ جب تک یہ اقتدار میں رہیں گے یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی غیر جانبدار تفتیش نہیں ہونے دیں گے, ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف نہیں ہونے دیں گے. ان کے رخصت ہونے کے بعد بھی بدقسمتی سے جو انصاف کا پیمانے تھے وہ بدستور جوں کے توں ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف جو آج سے 6 سال قبل جس پوزیشن پر ہم کھڑے تھے, آج بھی ہم اس پوزیشن پر کھڑے ہیں. اور موجودہ حکومت میں بھی انصاف کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور ہم عدالتوں میں ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں کیس لڑ رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں, ہر ہفتہ اتوار جہاں پر تاریخ ہوتی ہے. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں ہماری کچھ اپیلیں ہیں, سپریم کورٹ میں ہماری کچھ اپیلیں ہیں. ہم جو قانون, جیسے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے کہا تھا کہ آپ قانونی عمل پروسیس کا حصہ بنیں, ہم تو ہر فورم کے اوپر انصاف مانگ رہے ہیں. ظاہر ہے انصاف اس ملک کی عدالتوں نے ہی دینا ہے اور عدالتوں سے باہر تو انصاف نہیں ملنا, وہ ہم مانگ رہے ہیں. اور اب خدا جانے کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں اور کون سے ایسے پرابلمز ہیں جو انصاف کے راستے کی دیوار بنے ہوئے ہیں. رانا افضل خان صاحب, آپ کے خیال میں کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر انصاف کی فراہمی جو ہے وہ تاحال ناممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ عدالتوں کے اندر ہمارے کیسز ہیں. جے آئی ٹی میں آتا ہوں صدیقی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں, رانا صاحب سے ذرا ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیں. جی رانا صاحب. سب سے پہلے تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جہاں جو ہے وہ بیریئرز ریموو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس کے اندر آن سپاٹ جو ایکشن پولیس نے لیا اس کی وجہ سے جو ہے ہلاکتیں ہوئی, اموات ہوئیں. یہ بڑا انفارچونیٹ تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری گورنمنٹ نے, شہباز شریف صاحب نے فوراً جو ہے ایک کمیشن کا فارم کرنے کا آرڈر دیا جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے تحت فارم ہوا. اس نے اپنی رپورٹ بھی شائع کی اور پھر الزام لگا کہ حکومت جو ہے, ہماری حکومت اس وقت تھی, کہ اس کو رپورٹ کو پبلش نہیں ہونے دے رہی. پھر وہ لاہور ہائی کورٹ کے تھرو وہ رپورٹ پبلش بھی ہو گئی اور اس کے اندر بھی جو ہے کسی قسم کا بلیم ہماری لیڈرشپ پہ نہیں آیا. یہی چیز پوائنٹ آؤٹ ہوئی کہ وہاں کی اس وقت کی جو پولیس تھی, کیونکہ یہ کلیش کا سما تھا, وہاں ایکشن ہو گیا اور اس کے نتیجے بڑے خراب ہوئے. ہم نے تو تھرو آؤٹ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا ہے اپنے آپ کو, جو ہے وہ جوڈیشل پروسیڈنگ ہو, چاہے جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ یہ جو ایک جے آئی ٹی بنی تھی اس کے اندر میاں نواز شریف نے بھی بیان دیا, شہباز شریف نے بھی دیا, اس کے اندر رانا ثناءاللہ نے بھی بیان دیا. لیکن یہ جو جے آئی ٹی بنی تھی میرے خیال سے یہ 2019 میں, اس کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا, میں لائر تو نہیں ہوں لیکن جتنا مجھے پتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, کہ جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے اور جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے 97 کا, وہ الاؤ نہیں کرتا کہ فریش انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جائے چلان جمع ہونے کے بعد اور چارجز فریم ہونے کے بعد, جو کہ میرے خیال سے اینٹی ٹیررزم کوڈ کے اندر ہو چکے ہیں اور وہاں ابھی انویسٹیگیٹو سٹیج کے اوپر سلسلہ چل رہا ہے. اور وہاں بھی ہم لوگ جب بلائے جاتے ہیں ہماری لیڈرشپ وہاں پارٹیسپیٹ کرتی ہے. لیکن میرے خیال سے یہاں ایک پوائنٹ میں نقطہ ضرور ریز کرنا چاہوں گا کہ اگر پی ٹی آئی حکومت جس کا بس نہیں چلتا کہ وہ ہمیں, ہماری لیڈرشپ کو, چاہے وہ میاں نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, احسن اقبال ہو, رانا ثناءاللہ ہو, سارے حمزہ شہباز ہوں, ان کو جیلوں کے پیچھے ڈال دیں, وہ اس کے اوپر کیوں کچھ نہیں کر سکے؟ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ بے قصور ہے اور یہی ایک حقیقت ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پروو بھی کریں گے. ہم لوگ اینٹی ٹیررزم کوڈ کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور وہاں بھی اس چیز کو ہم پروو کریں گے کہ یہ اس انسیڈنٹ میں ہم لوگ, لیکن اس ذمہ داری سے تو آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے خان صاحب, کہ جو آپ, کیونکہ گورنمنٹ آپ کی تھی, یقیناً آپ رسپانسبل تھے.
डेफिनेटली जो पुलिस थी वो उस वक्त का जो वहाँ जो SHO था या मैं जो इसका जवाब SP देना था चाहूंगा। ऑपरेशन जो उसको जो लीड कर रहा था, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसके ऊपर DIG होता है, फिर उसके ऊपर IG पंजाब होता है। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसकी जिम्मेदारी थी। हम लोग बिल्कुल पूरा साथ देंगे। जुडिशियल इंक्वायरी का जो एंटी टेररिज्म कोर्ट में हो रही है, जब इन्होंने JIT बनाई, हमने उसमें भी जो है वो फुली साहब JIT पे बार बार जो है वो आपने भी जिक्र किया और इससे पहले सिद्दीकी साहब भी जो है वो JIT का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन JIT की एडमिसिबिलिटी कोर्ट के अंदर तो कहीं नहीं है। ये तो मीडिया कंजम्पशन के लिए या जो है वो ज़हनी तशफ़ी के लिए बहुत है। नहीं, वो JIT मेरे ख्याल से वो सस्पेंड हो गई, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया था। क्योंकि आज से पहले हमने जितनी JIT देखी हैं वो तो सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए है, वो कोर्ट में तो कहीं एडमिसिबल नहीं होती हैं। देखें, बिल्कुल कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है, वो एक इंक्वायरी रिपोर्ट की तरह होती है। बिल्कुल जो असल केस है, जो प्रोसीजर है लॉ का, वो यही है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये केस चल रहा है और वहाँ जब हमें बुलाया जाता है हम पेश होते हैं। जी सिद्दीकी साहब, आप कुछ कह रहे थे। जी बिल्कुल। अभी मैं राणा साहब को ठीक तरह से सुन नहीं सका अंदाजे के साथ जो मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी है। ये कहना चाह रहे हैं कि शायद एंटी करप्शन लॉ जो टेररिस्ट लॉ है उसके तहत दूसरी JIT नहीं बन सकती। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये फैसला किया था। क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठने वाले जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, क्या उनकी अहलियत के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं? वो नहीं समझते थे कि ये बन सकती है, नहीं बन सकती। तो लार्जर बेंच के सामने ये दूसरी JIT बनी थी। और दूसरी जो बात इन्होंने कही है कि हम हर फोरम पर कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये 3 साल या 4 साल इनकी हुकूमत रही है। जितने साने मॉडल टाउन के अंदर मुलव्वस थे पुलिस अफसरान और जितने सिविल अफसरान इस साने में अंदर मुलव्वस थे, सबको इन्होंने तरक्कियां दी। डॉक्टर तौकीर शाह को जो इनको हटाया गया था, इन्होंने खुद तस्लीम किया कि वो इसमें मुलव्वस, उनको हटाया गया। उसके बाद उनको सफीर बना के जनेवा भिजवा दिया गया। और वो जो IG मुश्ताक सुखेरा साहब हैं, अभी वो रिटायरमेंट भी उनकी नहीं हुई थी, ऐलान भी नहीं हुआ था, और उसके बाद उनको वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने अपना मशीर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो उस पर मुतमिन नहीं हुए तो उनको वफाकी टैक्स मोहतसब बनाकर वफाक में भिजवा दिया गया। क्या उनकी अहलियत थी? उनकी बतौर टैक्स मोहतसब क्या अहलियत थी? उन्होंने खदमात अंजाम दी थी। इसी तरह जितने जो इंस्पेक्टर था वो DSP बनाया गया, जो DSP था उसको SP बनाया गया, SP को SSP बनाया गया। तमाम मुल्ज़मान को तरक्कियां दी गई। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कहूंगा कि जो साबिक IG पंजाब है मुश्ताक सुखेरा साहब, उन्होंने जनूबी पंजाब में छोटू गैंग के खिलाफ एक ऑपरेशन किया था। और छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 10% भी नफरी नहीं थी जो नफरी इन्होंने मॉडल टाउन में भिजवाई थी। पूरे 17-18 थानों की पुलिस भिजवाई थी। ये पूछे क्यों भिजवाई थी? क्या एक DIG लेवल का जो ऑफिसर है या एक SP लेवल का ऑफिसर है या एक थाने की नफरी दूसरे थाने की हदूद में किसी इजाजत के बगैर जा सकती है? मॉडल टाउन में क्या ऐसा क़यामत आ गई थी? कौन सा ऐसा यहाँ पर ऐसा लॉलेसनेस क्रिएट हो गई थी कि 17 थानों की पुलिस भिजवा दी? ये पूरी तरह मुलव्वस थे। ये सियासी ऑपरेशन था और डॉक्टर तैरुल कादरी को और उसके कारकुनान को खौफ ज़दा करना था, उनको सियासी आज़ादियों से महरूम करना था, और इसलिए इन्होंने ये कत्ले-आम किया। और जब तक ये रहे इन्होंने इंसाफ की तरफ पेशरफ्त नहीं होने दी। बदकिस्मती से इनके जाने के बाद भी इंसाफ की तरफ पेशरफ्त नहीं होगी। सिद्दीकी साहब, मैं बिल्कुल जो है वो अब्दुल खान साहब से पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि वो जो आपका एक जोश और वलवला था इस तहरीक के हवाले से कि आपको इंसाफ का उसूल के लिए जो आपकी जद्दोजहद थी, उसमें ये इतना लंबा पॉज जो है वो किस चीज़ की निशानदेही करता है? ना इस वक्त कोई सियासी तहरीक है, ना 14 की आपकी कोई ऐसी तहरीक है। सर, मैं इसका जवाब दे चुका हूं ना। ये अब मामला अदालत के अंदर है। हम अदालतों का एहतराम करते हैं और कानूनी तरीकाकार के मुताबिक इंसाफ मांग रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने जब डॉक्टर साहब से कहा था कि डॉक्टर साहब आप एहतजाज नहीं करना, आपका जो दरीना मुतालबा था गैर जानबदार तफ्तीश का, वो मान लिया गया है। तो अगर एहतजाज के नतीजे में इंसाफ मिलते हैं, क्या पाकिस्तान का कानून ये है कि सिद्दीकी साहब, आपने भी तो कहा ना कि रुकावटें कौन सी हाइल हैं, तो उन रुकावटों की निशानदेही या उनको हाईलाइट करना ये भी तो आप ही की जिम्मेदारी है। देखिए, हम कह रहे हैं ना कि जब एक JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, उसको एक लोअर कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया। अब हम क्या करें? हमारी जुबानें और हाथ बंधे हुए हैं। यहां पर तौहीन अदालत का भी कानून है। हम इज्जत के साथ और इंतहाई अदब के साथ ही बात कर सकते हैं। आखिर वो एक मुल्ज़म के दरखास्त पर जो है वो स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया।
इंसाफ देना हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, इंसाफ देना अदारों की भी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अदलिया की है। और हम हाथ बांध कर अदलिया के सामने खड़े हुए हैं। हम 400 से ज्यादा पेशियां भुगत चुके हैं। सबसे बड़ा जुल्म यह है कि सानिया मॉडल टाउन के कत्ले आम के खिलाफ जिन कारकुनान ने एहतजाज किया था, उन 107 कारकुनों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी की दफात लगाकर उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, और किसी को 5 साल और किसी को 7 साल के लिए जेलों में बंद कर दिया। जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई वो इस वक्त जेलों में बैठे हुए हैं, और जिन्होंने कत्ले आम किया वो दरदराते फिर रहे हैं, वो पुरकशिश ओहदों पर बैठे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत से हमें सबसे बड़ा गिला यही है कि माजी में तो वो इनको तहफ़्फ़ुज़ देते थे, आज वो लोग अपने ओहदों पर क्यों बैठे हुए हैं? मुश्ताक सुखैरा अपनी सीट पर क्यों बैठा हुआ है? तारिक अजीज अपनी पोजीशन पर क्यों बैठा हुआ है? एसपी सुलेमान को तरक्की क्यों मिली है? जो इंस्पेक्टर थे वो पुरकशिश थानों में बैठे हुए हैं। आपने मौक़िफ़ सुना कि जिनको जेलों में होना चाहिए था वो तरक्कियां पा रहे हैं, और जिनको तरक्की मिलनी चाहिए थी वो जेलों में हैं, मजे उड़ा रहे हैं, मौजे कर रहे हैं। और एक आखिरी बात मेरी प्लीज सुन लीजिएगा, एक मिनट प्लीज सुन के फिर बात कीजिएगा। हमें आपसे अब इतना ज्यादा गिला नहीं है जितना हमें अब इस निज़ाम इंसाफ से गिला है। अगर इस मुल्क के अंदर निज़ाम मजबूत होता, अदारे मजबूत होते, तो किसी की जुर्रत नहीं थी कि किसी खातून के मुंह के अंदर वो गोलियां बरसाता, उनके दुपट्टे नोचे जाते, और बूढ़ों को जानवरों की तरह पीटा जाता, नौजवानों को ज़िबा किया जाता। अगर इस मुल्क में अंदर कानून की हुक्मरानी होती, कानून की बालादस्ती होती और निज़ाम अदल होता, तो ये इतना जुल्म ना होता। और जुल्म अगर हो जाता तो फिर कातिल इस तरह दंदनाते ना फिरते होते। बदकिस्मती से निज़ाम अदल जो है उसके ऊपर भी हमें बहुत बड़ा शिकवा है। मैं एक बात और आखिरी बात मैं करना चाहूंगा। सानिया मॉडल टाउन के इंसाफ के लिए पाकिस्तान के 3 ताकतवर तरीन ओहदेदारों ने यकीन दहानी कराई थी कि इंसाफ मिलेगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब ने यकीन दहानी करवाई थी कि इंसाफ मिलेगा। ये सानिया मॉडल टाउन की जो FIR है, ये तो दर्ज ही जनरल राहील शरीफ साहब की मुदाखलत से हुई थी, वरना ये नवाज हुकूमत और शहबाज हुकूमत ने तो अदालत के हुक्म पर भी FIR राणा साहब से लास्ट कमेंट ले लूं, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी राणा साहब, देखें, सबसे पहले तो मुझे पता है मेरे भाई एग्रीव पार्टी हैं, इनका गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन 2-3 फैक्ट्स में करेक्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं की थी इस JIT को बनाने के लिए। ये पंजाब गवर्नमेंट ने खुद लाहौर हाई कोर्ट को बताया था कि हमें कोई ऐसे ऑर्डर नहीं आए सुप्रीम कोर्ट से, हमने खुद बनाई। एक तो ये चीज होगी। दूसरी बात ये हो गई कि आज हम हुकूमत में नहीं है, हम ऑपोजिशन में है, हमारे पास किसी सूबे की हुकूमत नहीं है, हम किसी भी तरीके से किसी भी प्रोसीडिंग के ऊपर हावी नहीं हो सकते, बल्कि यहाँ तो PTI हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हमारी पार्टी हर बंदे को जेल में डाल दिया जाए, यहाँ तक कि हमारे लीडर पे जाली हीरोइन के और ड्रग स्मगलिंग का पर्चा भी किया गया। हमारे एहसन इकबाल साहब को भी एक जाली केस के अंदर बिल्कुल ऐसे ही। राणा अफजल साहब, नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त चलते हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा हाजिर होते हैं और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि आज नेशनल असेंबली में क्या हुआ और क्या वाकई जो है वो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है कोलिशन पार्टनर्स की जानिब से, उसके जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसको किस हद तक खतरात लायक हैं। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जिक्र करा था आज नेशनल असेंबली की जो सूरत हाल हुई और जिस तरीके से BNP मैंगल ने अपनी राहें जो है वो हुकूमत से जुदा कर ली हैं, उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। यकीनन क़यास सराइयाँ जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला जो एक इंडिकेशन सामने आता है वो शायद यही आता है कि हुकूमत जो है वो ख़तरे में है। दीगर कोलिशन पार्टनर्स की क्या पोजीशन होगी, वो किस हद तक जो है वो अब मज़ीद, क्योंकि माजी करीब में ये बहुत ज़्यादा इंप्रेशन आता था कि जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो आप उसको ब्लैकमेलिंग कह लें या उनकी तवक्कुआत जो है वो बढ़ जाती हैं। अब हुकूमत किस तरीके से इसको मेंटेन करेगी, या आज की मौजूदा सूरत हाल में बजट के फ़ौरन बाद ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो, और बिलखुसूस कोविड-19 के साथ जहाँ इस वक्त मुल्क को जो है वो बेतहाशा मसाइल का सामना है, इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत किस हद तक जो है वो इन तमाम तर मामला से निपटने के लिए अपनी एफर्ट्स लगा सकती है, इसी पे बात करेंगे। उससे पहले हमारे पास एक पैकेज है, इसी पर आज किस तरीके से मैंगल साहब ने इस पे रिस्पॉन्ड करा आज की सूरत हाल पे, यकीनन उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक पैकेज देखते हैं, पैकेज के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
नाज़रीन, तमाम तर क़यास राइयों से को बालाए ताक रखते हुए भी अगर देखा जाए तो मौजूदा हालात में मौजूदा हुकूमत के लिए यकीनन जो है वो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं जान अचकज़ई साहब, तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद रेन, और जबकि BNP मैंगल को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे साथ सनाउल्लाह बलोच साहब भी मौजूद हैं। जान अचकज़ई साहब, सबसे पहले आज की मौजूदा सूरत हाल में इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी यकीनन हुकूमत के लिए जो है वो कोई अलार्मिंग सिचुएशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन मुल्क के लिए जो है वो किस हद तक ये नुकसानदेह है? देखिए, अच्छा है कि PTI अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रखे, उनके साथ जो कमिटमेंट उन्होंने किए हैं वो जिस हद तक मुमकिन हो सियासी लिहाज से, इंतज़ामी लिहाज से उनको फुलफ़िल करें। लेकिन सियासत जो है वो इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल है। ये एक बेरहम प्रोफेशन है, इसमें बहुत से वादे किए जाते हैं इसलिए कि वो पूरे ना हों। उस वक्त जब पार्टियों को ज़रूरत होती है, छोटी पार्टियों के वोट्स की, तो बहुत से ऐसे डिमांड भी किए जाते हैं जो वाकई अमली तौर पे फुलफिल नहीं किए जाते और सिर्फ उस वक्त दस्तखत किया जाता है। वो जिस वक्त जहांगीर तरीन साहब गए कोयटा में, उन्होंने भी ऐसे डिमांड्स यानी नेशनल पार्टी के माने जो शायद पाकिस्तान की सिर्फ एक इदारे के साथ मुंसलिक नहीं थे, सिर्फ PTI की नहीं थी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के साथ भी उनका कोई डायरेक्ट यानी लिंक बनता है। तो इस हवाले से जब सियासी पार्टी जब इक़्तिदार में आती है तो वो कमिटमेंट उस वक्त करे जब उनको लगे कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तेफाक यानी उनको यानी उनकी हिमायत के साथ हम उन कमिटमेंट को का इरादा करें और उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिश करें। लिहाजा वो कमिटमेंट्स पूरे करने से कासे रहते हैं। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि सियासी पार्टियां पब्लिक नैरेटिव के लिए बयानियां देती हैं, लेकिन प्राइवेटली ड्राइंग रूम की भी एक सियासत है जिसमें वजारतों की बात की जाती है, जिसमें फंड्स की बात की जाती है, मेरा वजीर, आपका सेक्रेटरी, कौन सा DPO, वो रियल पॉलिटिक जिसे कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है या कोई पहली पार्टी ये नहीं है, लेकिन अगर ये BNP की बात कर ली जाए तो ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं रही है कि इस तरीके से ब्लैकमेल करके जो है वो मजीद एम्पावरमेंट के लिए, कुछ हासिल उसूल के लिए जो है वो इस किस्म की कोई एफर्ट्स लगाई गई हों। देखिए, हर सियासी पार्टी की सियासी मजबूरियां भी होती हैं। अपोजिशन में आप रह के लोगों की खिदमत नहीं कर सकते, लोगों ने वोट दिया है, MNAs MPs की तवक्कुआत होती हैं, उन्होंने डेवलपमेंट के काम करने हैं, इंतज़ामी लिहाज से अपने वोटर्स और बेख्वाहों के मसाइल और मुतालबात को हल करना है। तो हर हुकूमत के साथ जब आप उसका हिस्सा बनते हैं तो बेशक आप एक्टिव यानी उनके कोalition पार्टनर नहीं होते, लेकिन फिर भी आपने हुकूमत से काम लेना होता है। अगर आप हुकूमत से काम नहीं लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके MPs MNAs वोट नहीं ले सकेंगे। ये प्रैक्टिकल मजबूरी हर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की होती है और यही नेशनल पार्टी की भी है। शायद थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा, जो भी नुकात थे ये तकरीबन कमोबेश वही नुकात थे जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है वो वज़ीर आज़म अपनी तकारीर में जो है वो प्री इलेक्शन कैंपेन में उससे पहले जो है वो इनका जिक्र करते थे और इनको एड्रेस करने की बातें किया करते थे। आज अख्तर मैंगल साहब ने भी जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल को कोट किया है अपनी तकरीर में। तो ऐसी क्या मजबूरियां हैं, क्यों नहीं जो है वो फुलफिल हो सके? चले एक आध कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं किसी भी जो नुकात थे उसमें कहीं पे भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मंसूर, देखें, जो अपोजिशन में आप बोलते हैं, जैसे वज़ीर आज़म साहब भी सरदार अख्तर के साथ जब अपोजिशन के दौर में मिलते थे तो यही सारी बातें उनके भी मौक़िफ़ में होती थी। जान अचकज़ई साहब ने अभी एक बात की कि जो मुआहिदों पर दस्तखत किए गए उसको पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स बहुत से इदारों से रिलेट करते थे। बड़ी माजरत के साथ लगता है कि हर मामले को किसी एक मखसूस इदारा क्या कहूँ एस्टैब्लिशमेंट शायद आपकी आवाज़ में जो है वो इशू आ रहा है। सनाउल्लाह बलोच साहब, क्यों अचानक है ये तब्दीली, या जो है वो आपकी जो मतलब बर्दाश्त थी वो ख़त्म हो गई जिसके बाद जो है वो आपने अचानक ये फैसला करा और एकदम आज जो है वो आप हुकूमत से बाहर आ गए? देखिए, ये कोई अचानक नहीं है। जुलाई 2018 में इलेक्शन हुए, अगस्त 2018 में हमने PTI के साथ जब उनको हमारी हिमायत की ज़रूरत थी क्योंकि उनकी जो अददी तादाद है वो कौमी असम्बली में बहुत ही कम है हुकूमत बनाने के लिए, तो उस वक्त जब उन्होंने अप्रोच किया तो हमने उनको कहा कि हम कोई दिलचस्पी नहीं रखते वजारतों में, ना हम किसी मुशीरी के ओहदे में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे बलोचिस्तान के हवाले से चंद देरीना मसाइल हैं जो मुसलसल हुकूमत उनको नज़रअंदाज कर रही है। मिसाल के तौर पर बलोचिस्तान वफाक का एक इकाई तो है, लेकिन बलोचिस्तान को तरक्याती अमल में,
سیاسی عمل میں، معاشی عمل میں، معاشرتی عمل میں، اور اس سے سب سے بڑھ کر آئینی اور انسانی حقوق کے عمل میں ہمیشہ جو ہے دوہرے درجے کا شہری سمجھا گیا ہے بلوچستان کے لوگوں کو. لہذا یہ روش ختم کرنے کے لیے ہم نے ان کے سامنے کچھ نکات رکھے. تو یہ نکات اصل میں ریلیٹڈ تھے ان سارے ایشوز سے، جس میں پولیٹیکل ہیں، سیاسی ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، آئینی ہیں اور انسانی حقوق سے متعلق ہیں. یعنی بلوچستان میں گزشتہ مختصراً میں آپ کو بتاؤں 15 سے 20 سال سے ایک بہت بڑا تنازع چل رہا ہے کہ جی وفاق ہمارے گیس پہ، ہماری قدرتی وسائل پہ، ہماری ملازمتوں پہ، ہمارے ساحل پہ، وسائل پہ، سب پہ وفاق جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے اور اس کے جو ہے فوائد ہمیں نہیں مل رہے. اس نے ایک تنازع کی شکل اختیار کر لی. تو اس تنازع کی وجہ سے کافی جو ہے یہاں پر خون خرابہ ہوا. بڑے ہی دونوں طرف سے جو ہے لوگ جو ہے آلہ پائے کہ وہ اس میں نقصان بھی ہوا لوگوں کا، انسانی جانیں ضائع ہوئی. پھر اسی عمل میں لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی، لوگ لاپتہ بھی ہوئے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ جی اگر جب تک بلوچستان کا معاملہ آگے اس وقت بڑھ سکتا ہے ریکنسیلیشن ہو، یعنی آپ افاق و تفہیم سے معاملات کو آگے بڑھائیں. اور افہام و تفہیم کے لیے جو بد اعتمادی بلوچستان کے شہریوں اور وفاق میں ہے، وفاق کے اداروں میں ہے، وہ ختم کیا جا سکے. اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو لاپتہ لوگوں کا جتنا بھی ہے ان کی بازیابی یا ان کو عدالتوں میں پیش کرنا یا ان کو جو ہے جو کیا کہتے ہیں کہ قانون کے جو ہے دائرے میں لا کر ان کے حوالے سے جو ہے فیصلے کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ترقی کے عمل میں بلوچستان جو پیچھے رک گیا ہے 30 سے 40 45 سال کے قریب، تو وہ جو عمل ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے اس گیپ کو فل کیا جائے، اس کے حوالے سے ہم نے ان کو سارے مطالبات پیش کیے. لیکن انفارچونیٹلی جب ہماری اتحاد ان کے ساتھ بنی، پھر ان کو صدارتی الیکشن کے حوالے سے ہمارے ووٹ کی ضرورت تھی، ہم نے وہ ووٹ بھی ان کو دیا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ بعد میں انہوں نے نہ کوئی اس پہ کمیٹی بنائی، نہ کوئی رابطے کا یا کوارڈینیشن کا کوئی میکینزم ڈیولپ کیا، نہ کوئی کنسلٹیشن کا پروسیس انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ وقتاً فوقتاً صلاح مشورہ. لیکن ثناء اللہ صاحب، آج کی موجودہ صورتحال میں آپ کا یہ جو اسٹیپ ہے یقیناً جو ہے وہ آپ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے اس تمام تر صورتحال میں. لیکن یہ جو بد اعتمادی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ جو ویکیوم ہے اس کو مزید جو ہے وہ فیول نہیں کر رہے اگر آج آپ یہ سچویشن کھڑی کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ویکیوم ہم فیول نہیں کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو اس کی ایک بات بتاؤں. مثلا آپ اندازہ لگائیں کہ گزشتہ 1.5 سے 2 سال میں جب سے ہم ان کے ساتھ اتحادی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان اتحادیوں میں سے ہیں. ہم نے نہ ان سے کوئی شوگر کے مل مانگے، نہ ہم نے ان سے بڑے بڑے قرضے مانگے، نہ ہم نے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں کوئی ان کے ساتھ کہا کہ کوئی ہمارے لیے کوئی اسپیشل SOR جاری کریں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے وفاق کو، کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے بلوچستان اور وفاق کے، اس کو کم کرنے میں ہمارا کردار تھا. یہ ان کو چاہیے تھا ایک میکینزم ڈیولپ کرتے، انہوں نے نہیں کیا. ہم نے جب اتحاد کے فوراً بعد 2-3 مہینے کے بعد ہم ان کے دروازے پر بار بار دستک دیتے رہے کہ جی جناب والا آپ کو یاد دلائیں. پھر میں نے خود ڈیولپ کیا، واز پارٹ آف دیٹ کمیٹی جو BNP نے بنائی، جس میں صدر اختر مینگل صاحب سربراہی کر رہے تھے، میں تھا اور ہمارے ایک سینئر سینیٹر صاحب تھے ڈاکٹر جان زیب صاحب. ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. جس طرح بھی آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ یہ بہت سے معاملات مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، منسلک ہیں. اس میں لاپتہ افراد کا ہو، انسانی حقوق کا ہو، بلوچستان میں سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ ہیں. دیر آر سیورل اسٹیک ہولڈرز اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں. اور یہ PTI کی حکومت کی جو ہے وہ صلاحیتیں تھیں کہ اگر وہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیتا اور یہ مسائل کی حل کی طرف بڑھتے. پرابلم کیا ہوا کہ 3-4 مہینے سے لے کر آج تک وہ ایک کمیٹی بھی نہیں بنا سکے. کبھی 2 آدمیوں کے نام دیتے، کبھی 3 کے نام دے دیتے. اب تو رول صاحب ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو ہے وہ اچکزئی صاحب سے اور جو شاہد زین صاحب سے جو ہے وہ اسی پہ سوال کریں گے، کیونکہ یہ کوئی اتنے ایسے ایشوز نہیں ہے کہ جن کو جو ہے وہ حل نہیں کیا جا سکتا. اور بہرحال بلوچستان کے حوالے سے جس محرومی کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پہ جانے سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ BNP مینگل کے علیحدہ حکومت سے ہونے کے کیا اثرات جو ہے وہ حکومت پر پڑ سکتے ہیں. یقیناً اگر عوام کا رخ تبدیل نہیں ہوتا تو ایسی صورتحال میں اگر تمام کولیشن پارٹنرز بھی چلے جاتے ہیں تو بھی حکومت کو یقیناً کوئی خطرہ نہیں ہے. اچکزئی صاحب، لیکن یہ جو بنیادی سوال ہے، یہ جو پوائنٹ ریز کیے گئے ہیں یا جو MOU سائن ہوا تھا، اس میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو رد کر سکتے ہیں، کہ جس کی بنیاد پہ بالخصوص بلوچستان کا جو استحکام ہے اس کی ضرورت ہے؟
देखिए, बलूचिस्तान में सिर्फ सियासी पार्टियों का एक बयानिया नहीं है, वहाँ पे वफाक का भी एक बयानिया है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का एक बयानिया है। जो इश्यूज़ हैं मिसिंग पर्सन का, वो एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। यहाँ पे बहुत से इदारों का कहना है कि मिसिंग पर्सनस की फैमिली का डेटा नहीं है। वो मसला जो है तकरीबन रिजॉल्व हो चुका है और इस पर कौम परस्त सियासी जमातें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए ये इशू इस्तेमाल कर रही हैं और उनके ख्याल में यही मौक़िफ़ इंडिया का भी है जो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों को मलाइन कर रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल इशू है, इसके डेटा के बारे में बहुत से सवालात हैं और ये एक ऐसा इशू है जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स ने बैठ के कोई ऐसी कन्वर्जेंस पैदा नहीं की है। लिहाजा जो बुनियादी सवाल है चक्र साहब, वो तो ये कि रूट कॉज को तो आपको आइडेंटिफाई करना है ना, जिसकी बुनियाद पर अगर भारत भी फायदा उठाना चाहता है या कोई और नॉन स्टेट एक्टर्स अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो बुनियादी जो इश्यूज हैं उनको तो एड्रेस करेंगे। देखिए, रूट कॉज मेरे लिए एक हो सकता है, आपके लिए दूसरा हो सकता है, मेरे भाई सनाउल्लाह बलूच साहब के लिए तीसरा हो सकता है। इस पे तो बहस हो सकती है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि बलूचिस्तान में सियासी पार्टियां बिलखसूस कौम परस्त और दूसरी जिसमें मजहबी जमात भी हैं, तमाम की सियासी पार्टियों ने मरकज़ को ब्लेम किया है। सिर्फ मरकज़ को ब्लेम करना ही बलूचिस्तान के मसाइल के जो अंबार हैं उसकी जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली जा सकती। ख़ुद सूबे की सियासी लीडरशिप की भी कमज़ोरियाँ हैं, आज भी हैं, माजी में भी रही हैं। उन्होंने इस मसले को जो इस तरीके से हाईलाइट किया है कभी नहीं किया। उन्होंने मसलियत पसंदी का शिकार हुए हैं। जब उनको वजारतें नहीं मिली, सीएम शिप और दूसरे सूबे में हिस्सा नहीं मिला, तो अपोजिशन के तौर पे इस बयानिए को किसी ना किसी हवाले से हर सियासी पार्टी ने एक ग्रीवियंस नैरेटिव जिसे कहते हैं को जिंदा रखा है। तो इस पे सियासत भी की जाती है। बलूचिस्तान में पॉपुलर वोट के लिए आपको लोगों के जज्बात से भी खेलना पड़ता है। इशूज़ जेन्युइन हैं, जिस तरह केपी में है, जिस तरह सिंध रूरल में है, जिस तरह साउथ पंजाब में है, बलूचिस्तान में भी है, लेकिन गुर्बत और दूसरे मसाइल शायद बलूचिस्तान के ज़्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जहाँ पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स की फेलियर्स हैं वहाँ पे हमें बलूचिस्तान में ज़्यादा उसकी मिसालें मिलती हैं। तो वो तो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, लेकिन जिस तरीके से सियासी पार्टियों ने इस इशू को एक्सप्लॉइट करके अपनी सियासी खदोकाट को बढ़ाने की कोशिश की है, वो भी एक मुसलमा फैक्ट है। लेकिन बहरहाल ये भी आप नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान के मसाइल नहीं है, क्योंकि एक सियासी पार्टी के सियासी मकासद है, वो इशू जेन्युइन नहीं है। इशूज़ है, बिल्कुल है, वफाक को जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। शायद हुकूमत पे क्या असरात पड़ेंगे, यकीनन मल्टीपल एस्पेक्ट हैं जिस पे बात हो सकती है, लेकिन बलूचिस्तान की सूरत हाल पे क्या असरअंदाज होगी आज की डेवलपमेंट जो है, वो किस तरह बलूचिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा आज की डेवलपमेंट के बाद? देखिए मंसूर, आज की डेवलपमेंट के बाद जो बलूचिस्तान का पॉलिटिकल मुस्तकबिल है, वो उससे पहले कि आज सरदार अख्तर मेंगल हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते, उन्होंने कल ही मौलाना वासे से मुलाकात की और मौलाना वासे से मुलाकात में उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को मैसेज भेजा है। आज जब सरदार अख्तर मेंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया तो उसके फौरी बाद मौलाना वासे, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के अमीर हैं, उन्होंने इस फैसले को खुशाइंद करार दिया बलूचिस्तान के अमीर ने। और हमारे जरा ये बता रहे हैं कि मौलाना वासे को सरदार अख्तर मेंगल ने मौलाना फजलुर रहमान के लिए जो मैसेज दिया है, वो मैसेज वलीबाग चारसद्दा तक जाना है और वहां से जो रिप्लाई आएगा उसके बाद जो पॉलिटिकल मूव होगी वो बलूचिस्तान में होगी। हमारे जराए का ये कहना है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हद तक सरदार अख्तर मेंगल को मनाने की हद्दुल वसा कोशिश कर सकती है। जो बात मेरे भाई जान अचकज़ई ने की लापता अफराद के मामले पे, सबको रिस्ट्रिक्शन का भी अंदाजा है, मुल्क की सिक्योरिटी का भी अंदाजा है, लेकिन जो दीगर 5 नुकात हैं उनका किसी ऐसे इदारे से ताल्लुक नहीं है जिसे आप एस्केप बोर्ड बना के या साइड पे कर दें। क्या ग्वादर के हवाले से जो उनका एक बलूचिस्तान की जो मकामी लोग हैं उनका मुतालबा था, पीटीआई अगर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी तो डे वन एक्सेप्ट ना करती। इसके अलावा अफगान महाजरीन का जो मसला है, बलूचिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट मौजूद है कि अफगान महाजरीन की मौजूदगी की वजह से ये मसाइल ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो वफाक में 6% मुलाजमतों के कोटा है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें पॉलिटिकल डिबेट के साथ मैंने अर्ज की कि ये तमाम चीजें जो है वो मतलब हल तलब हैं और हल हो सकती हैं। मैं यही कह रहा था। और दूसरी बात आपको बताऊं, सरदार अख्तर मेंगल ने जो आज मूव किया है, चंद रोज कब मैंने एक तहरीर में इस बात का इशारा दिया था कि सरदार अख्तर मेंगल के जो पीटीआई के साथ उन्होंने अलायंस किया, पीटीआई की हिमायत का ऐलान किया, लेकिन उनकी बहुत अच्छी दोस्ती मुस्लिम लीग नून में और बहुत अच्छे राब्ते आसिफ अली जरदारी से मौजूद हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे जराए ये भी बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और सरदार अख्तर मेंगल का टेलीफोनिक राब्ता हो चुका है। तो ये जो पॉलिटिकल मूव है, पीटीआई जरूर कोशिश करेगी सरदार अख्तर मेंगल को मनाने की, और इस सिलसिले में बलूचिस्तान में जो उनकी मौजूद क़यादत है उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं। लेकिन सरदार अख्तर मेंगल इस सारी सूरत हाल में क्यों गए? 18वीं आईनी तरमीम पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है
वो BNP मेंगल से मुकम्मल तौर पे मुतसादिम रहा है। NFC अवार्ड के मामले पे जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो BNP मेंगल उसे एक्सेप्ट नहीं करती। ये वो इशूज़ हैं जिन पे BNP मेंगल समझती है कि सूबे के हुकूक सरेंडर होंगे। हुकूमत से निकलने का फैसला आज से चंद माह पहले वो कर चुके थे, लेकिन जिस मौके का उन्हें इंतजार था, आज उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर का इस्तेमाल किया। अगर उन्हें इस फैसले से पीछे हटना होता तो सरदार अख्तर मेंगल कभी भी कौमी असम्बली का फ्लोर इस्तेमाल ना करते। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में मजीद मुश्किलात होंगी और खासकर कोरोना के हवाले से और टिड्डी दल के हवाले से जो मुश्किलात मुल्क में आएंगी, सरदार अख्तर मेंगल समझते हैं कि इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होगी जो वो इस हुकूमत का एहतियात बलोच साहब, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। आप ये जो अपोजिशन का जो इत्तेहाद है इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, किसी नई मूव में जो है वो आप शामिल होने जा रहे हैं। BNP का मुस्तकबिल क्या है हुकूमत से बाहर आने के बाद? देखें, BNP का जो मुस्तकबिल है या BNP का जो माजी था आज से 2-4 घंटे पहले, वो यही था कि हम हुकूमत के कोई वो क्या है फायदेमंद इत्यादियों में से नहीं थे। हम उन इत्यादियों में से नहीं थे या कोलिशन पार्टनर नहीं थे जिनके पास कोई वजारत हो या जिनके पास कोई मुशीरी हो या जिनके पास कोई ओहदा हो। तो हमने जो सिर्फ और सिर्फ एक आज़ाद बेंचेस पे बैठे हुए थे, हमने अददी एतबार से उनको सपोर्ट दिया। जब प्राइम मिनिस्टर का वोट हुआ, बजट के वक्त उनको ज़रूरत पड़ी, 2-4 और ऐसे मौके आए जहां पर हमने आउट ऑफ द वे जाके PTI की हुकूमत को सपोर्ट किया। इस वक्त जो BNP की पोजीशन होगी, यकीनन हमारी पोजीशन सीधी है। जब हम आज़ाद बेंचेस पे सीट्स पे हैं, हम पहले भी आज़ाद सीटों पे थे, तो आने वाले 1-2 दिन में ये फैसला पोजीशन में जाने का, पोजीशन के साथ काम करने का, आप देखते हैं पोजीशन के साथ नेगोशिएशंस होंगी, बातचीत होंगी और यकीनन पोजीशन का हिस्सा बनेंगे जब आज़ाद बेंचों पे हम नहीं होंगे। तो बाकी रही हुकूमत के साथ बातचीत का, जिस तरह शाहिद साहब ने बड़ी तफसील से कहा कि जो 6 नुकात हैं, 6 से नहीं बल्कि बाद में 9 नुकात हमने और भी इनको पेश किए थे, वो जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का वक्त हुआ। ये सारे बलूचिस्तान के डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। ये जो चिश्ती साहब ने बात की, बयानिया जो है बलूचिस्तान का, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहता कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रीवेंसेस बेस्ड या लोगों के जज्बात के ऊपर जो है सियासत करें। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरियां, मुलाजमतें मिले। हम सब चाहते हैं हमारे हर घर में बिजली की रोशनी का कनेक्शन पहुंचे। हम चाहते हैं हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचे। हम चाहते हैं कि हमारे लोग सड़कों पर सफर करें तो वो कम से कम। लेकिन ये इस पर थोड़ा सा इसको रोशनी डालिएगा कि ये जो सब कुछ आप चाहते हैं, ये हुकूमत से बाहर आने के बाद अब क्या मूव होगी, इसको कैसे जो है वो आप सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं, आपके जो भी गोल्स हैं? देखिए, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि अचीव करें ना। ये कॉस्ट है। PTI की बहुत सी खामियां हैं। 2 साल में आप देख रहे हैं कि अवाम में PTI की गवर्नेंस के हवाले से बहुत से सवालात उठ रहे हैं। यानी एक तो ये है कि गवर्नेंस का जो स्टाइल है ये पाकिस्तान में कभी भी अपनाया नहीं गया। लोगों से जो वादे PTI ने किए वो खुद अपने वादे भी वफा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वह गवर्नेंस में जब आपका इतने कोलिशन, आपकी इतनी कमजोर हुकूमत होती है, इसमें आप कोऑर्डिनेशन, कंसल्टेशन का बड़ा रोल होता है। तो कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशन का मैकेनिज्म ये अपने कोलिशन पार्टनर के साथ आज तक ये डेवलप नहीं कर सके और हम इसका आंखों देखा, हमारा पास वो क्या कहें सबूत है। हमने बड़ी कोशिश की कि इनको ये सिखाएं कि कोलिशन गवर्नमेंट्स कैसे चलाई जाती हैं। रही बात अब यकीनन जब हम गवर्नमेंट में भी थे, ये कॉस्ट हम पे कर रहे थे। लोग कहते थे आप गवर्नमेंट में हैं, आप ये तरक्याती काम नहीं कर रहे हैं, आपसे सड़कें नहीं बनाई जा रही, आप बिजली नहीं ला सकते, आप जमींदारों को रिलीफ नहीं दे सकते, आप रोजगार के मौके पैदा नहीं कर सकते, आप मुलाजमीन को या बलूचिस्तान के और जो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड इशूज थे, तनाज़े जो है जिसका जिक्र जाना चिश्ती साहब ने किया कि सिक्योरिटी इदारों का एक बयानिया है, इसीलिए बयानिया वजूद रखता है बलूचिस्तान में कि एक तनाज़ा है यहाँ पे। और जब तनाज़ात होते हैं तो वहां पर 2-4-6 बयानिए होते हैं। जब डायलॉग होता है, कोऑर्डिनेशन होती है, कंसल्टेशन होता है, ये जो कमेटियां बनाई तो उसमें ये मुख्तलिफ बयानिए जो हैं वो एक दूसरे के सामने बैठते हैं और इसको हल करते हैं। ये बयानिए टीवी पे तो हल नहीं हो सकते, ये बयानिए असेंबली में भी इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है यकीनन जो है वो हमारे तमाम तर पैनलिस्ट ने इस चीज़ को एनालाइज किया और इस पे कंसेंसस भी शो किया कि इशूज़ अपनी जगह मौजूद हैं। आज नहीं देरीना इशूज़ हैं और ये हल तलब इशूज़ हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है कि किसी भी सतह के मामलात हों उनको जो है वो टेबल पर हल किया जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचता है। जाना चिश्ती साहब, शाहिद रिंद साहब, सनाउल्लाह बलोच साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि आइंदा आने वाले हालात जो है वो पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए यकीनन जो है वो बेहतर हों। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।